Hello everyone. So today's topic is binary search. Okay, and you can say like this is the most important topic, and we will cover this topic at a very fast speed, so that you understand the concepts, and I'll give you a homework also, and then you'll be able to मतलब basically चीज अच्छे से पकड़ में आ जाएगा. Okay, so let's begin with the things. Okay. So first the question comes is what is binary tree? So what is not binary tree, sorry, binary search. So what is binary search? Why you want to do it and how to do it? Yeah. So these are the very important questions that you must be asking yourself whenever you're learning any new concept, that what it is, why do it, and how to do it. So what is binary search? So there is linear search, which we studied in our last video. What did we study is similar like this. Okay, I hope you can see it. Okay, I think so. This is visible now. Yeah. Uh, yes. So there is linear search here. So here earlier it was linear search instead of binary search. And what we were doing is we were putting list of n elements and with an element x. And if we were able to find that or that present in that list or array you can say, then हम क्या करते थे कि we would have returned the index. Okay, now the thing is that was linear search. Now there should be something different. Now this is binary search. Okay, so one thing, like the first thing I would like to say is that instead of list of n elements, it contains a sorted list. Okay, now comes what is sorted list. Now you might ask, sorted is like is it either it is in increasing order or in a decreasing order. Okay, so what do I say means like you can say one, two, three, four, five. This is an sorted list. Also five, four, three, two, one is a sorted list. But for example, five, four, one, six, two. This is not a sorted list because here you can see six and five. So, or you can say 1, 2, 1, 3, 4, 10, 1. This is also not a sorted list because the numbers are not arranged properly. Okay. So, yeah, like the number should be either in increasing or in decreasing order. So, that is the main thing for sorted. So, I'll erase this. Okay. So the main point what I'm trying to say is it should have a sorted list of in elements and then we do it. So this is what basically binary search is all about. It is also similar to linear search. Like the understanding of it is similar, but the working is very different and you will feel very intuitive when you understand it. So chalo, let's understand how to do it. So what is it? We know it's just like a linear search which helps us to find elements. So you can say it is also a type of search which finds an index of element, which finds index of element you need. Okay, so why do you want to do it? That we will understand later. And why is it required? I think आपको समझ में आ जाएगा कि why is it important and how to do it. First, we will go and see how to do it. Then, when we see how, then we will get to know why do we need to do it. Okay, so let's go to our standard problem. Okay, so you just have to follow me. मेरे को बस simple से follow करो and you will be able to understand what it is. So say you have a sorted array. So you have a sorted array already, and I hope you can see it. Yes, you can see it. So there is a sorted array. We have 1, 11, 22, 34, 55, 67, 78, 79, 81, 88, 89, 90. Suppose we need to search an element. Say I'll randomly pick an element. Say, mm, say I want to find 22. Okay, 22. This is my search element. Now what I have to do is there is a formula which you will understand why is it required. So there is mid is equal to low plus high. Now here low.
you can say is 1. So what is this low? Low indicates ये वाला part. Okay. And what is high? High ये वाला है. ठीक है. इसको high बोलेंगे, इसको low बोलेंगे. ओके, अब क्या कर रहे हैं? लो प्लस हाई बाई टू, मतलब 1 + 12/13. सो 1 + 12/2 which is 13/2 which is 7. We are taking the ceiling of it. Okay, what is ceiling in the sense? मतलब अगर 7.1 आया तो हम 7 लेंगे, 7.9 आया तो 7 लेंगे. ठीक है. This is what ceiling is. So I'm just taking ceiling as my function. So what I will do is I will take a of 7. A is हमारा sorted array का name A. Okay, now A of 7. What is it? A of 7. A of 7 is 78. Now, this is the first step we did. Now, the second step is that we found out what is that element. Okay, after doing that, we will check that the number what we are finding, say 22. So we'll take 22. So I'll write it in a different color so that you understand that this is a important step. Cool. So yeah, let me erase that first. Okay. Next. So you can say this is our third step. Okay, what we are doing is, say we need to compare them. Compare what? 78 and 22. Now 78 is greater than 22. Okay, 78 is greater than 22. So logically what it means, मतलब समझ क्या आ रहा है कि हमको चाहिए यहाँ, लेकिन हम है यहाँ. We wanted 3 but currently we are in 7. तो उसके लिए what ideally you should do is, ideally you have a step like हम इसके पीछे चलते हैं. Okay, so how do we go back? So ऐसे जाते कैसे हैं? So this is the third thing. So let me show you actions to be taken. Okay, so I'll zoom in a bit so that you have a clear picture of it. Actions to be taken. अच्छा, how do we go back? अगर हमने high is equal to मिड, मिड, ये जो मिड है ना, ये मिड -1 कर देंगे तो ठीक है. हाई इज इक्वल टू मिड -1, मतलब अभी पहले जो मिड का वैल्यू था वो 7 था. ठीक है. अब हम एक कदम पीछे आ गए, मतलब यहाँ आ गए. सो हाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाई इज इक्वल टू 6. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? ओके. आराम से, कोई अर्जेंट नहीं, कोई अर्जेंट नहीं, बस समझते चलो. अब यहाँ देखना, 1, 11, 22, 34, 55, 67. ठीक है. इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. करेंटली अभी हमारा हाई क्या है? हाई हमारा 6 है, और लो क्या है? करस्पॉन्डिंगली लो 1 है. ठीक है. हम यहाँ तक आए, इसको हम बोलेंगे इटरेशन 1. इसको हमें तब तक दोहराना है जब तक हमें यहाँ ये ये कंपेयरिंग करने के टाइम में इक्वल टू नहीं मिलता. ठीक है. ओके. ओके. देन इटरेशन 2 में हम क्या करेंगे? थोड़ा और जूम आउट होने दीजिए मुझे. ओके. सो इटरेशन 2 में अब सेम स्टेप्स दोबारा करना है. मिड पहले फाइंड करना है. मिड क्या है? 1 + 6/2 विच इज 3.5 विच इज 3. ठीक है. 3 मिल गया. अब ए ऑफ 3 ढूंढो. ए ऑफ 3 क्या है? ए ऑफ 3 है हमारा 22. ओके. ए ऑफ 3 हमारा 22 है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा. 22 क्या इसके बराबर है? 22. यस. अगर ऐसा हो गया तो हमें रिजल्ट मिल गया. ओके. रिजल्ट मिल गया. सो हम बोल सकते हैं कि यस, वी हैव गॉट वी हैव गॉट विल रिटर्न द इंडेक्स. इंडेक्स क्या होगा हमारा? इंडेक्स हमारा होगा मिड वैल्यू. सो इंडेक्स इज इक्वल टू मिड. ठीक है. ये जो 3 है ना, 3, तो हम रिटर्न कर देंगे 3. ठीक है. तो हमें मतलब अपना एलिमेंट बस 2 ही स्टेप में मिल गया. हाउ मेनी स्टेप्स? 2 स्टेप्स. अगर हम लीनियर सर्च करते तो 1, 2, थर्ड स्टेप में मिलता. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बाइनरी इज फास्टर देन लीनियर. ओके.
क्या ये बात क्लियर है? ओके, नाउ एज मैंने 22 का दिखाया, लेकिन आई वुड लाइक टू शो यू 34 ऑल्सो। ओके, दैट हाउ फास्ट वी कैन गेट, और से थोड़ा इस तरफ चलते हैं, 88। लेट्स फाइंड 88 एंड शो यू हाउ डू वी डू दैट। ये लॉजिक समझ में आया? टेक अ ब्रेक, 2 मिनट आराम से रुको, समझो क्या किया मैंने, बस इतना एक बार समझ लिया, फिर उसके बाद सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम स्टेप्स, अब मैं 88 सर्च करना है, ठीक है? तो मैं इस सबको डिलीट कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, एक्शंस, एक्शंस को भी डिलीट करता हूँ, ठीक है? और ये भी, ठीक है, वो हमने 22 सर्च करके दिखा दिया। अब एक और बाकी है, 88 सर्च करते हो क्या? लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग्स, सॉरी, erase इज द टेक्निकल वर्ड। ओके, फिर से अब हमें सर्च क्या करना है? 88 सर्च करना है, ठीक है? सबसे पहला स्टेप, लो प्लस हाई बाई टू विच इज 1 प्लस 12 बाई 2 विच इज 13 बाई 2 विच इज 7.5 विच इज 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ए ऑफ 7 ढूंढना है। ए ऑफ 7 क्या है? ए ऑफ 7 78 है। ठीक है, अब हम 78 और 88 को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ ये बड़ा है। ओके, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, अगर अगर हमको बड़े की तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ कैसे जाएंगे? इस तरफ अगर हाई को अगर हम कुछ चेंज करेंगे, तो क्या ये हो पाएगा? नहीं। हमें लो को अगर हम इधर ला पाएंगे तब कुछ हो पाएगा? हाँ, शायद हो पाएगा। तो जब भी हमें राइट साइड मूव करना है, मतलब राइट साइड, ये हो गया हमारा राइट साइड, ठीक है, तो हम लो को इस तरफ ले आएंगे। अगर हमें लेफ्ट साइड मूव करना है, तो हम हाई को इस तरफ ले आएंगे। बस इतना ही लॉजिक समझना है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, एक्शंस क्या लेना है? लो इज इक्वल टू, ठीक है, अब लो को हमें चेंज करना है, तो हमें लो को कैसे चेंज करेंगे? अब हमें पता है कि ये जो 78 है ना, ये 88 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे वाला टर्म से स्टार्ट करेंगे, मतलब लो को हम यहाँ ले आएंगे। तो लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन कर देंगे। ठीक है, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन करते ही हमारा जो बाउंडेडनेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लो जो हो जाएगा वो 8 पे हो जाएगा, और हाई जो होगा वो 12 पर रहेगा। ओके, क्या लॉजिकल है? ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया, अगर इतना समझ में आ गया तो बस। ठीक है, अब देखना, ये स्पेस कितना छोटा होता है। तो 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, क्या क्या है? 79, 81, 88, 89, 90। ठीक है, ओके, तो सेकेंड इटरेशन में क्या करना है? सेम थिंग, mid is equal to low plus high by 2, so 8 plus 12 by 2, which is what? Which is 20 by 2, which is 10। ओके, 10 करते ही हमें डायरेक्टली मिल गया, मतलब a ऑफ 10 करेंगे तो 88 मिलेगा, और 88 मिलेगा तो थर्ड स्टेप में जब हम कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू आएगा, तो हम रिटर्न कर देंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या है? 10। ओके, तो ये तो सिंपल हो गया, मतलब ये तो थोड़ा इजी हो गया ना, इजी कर दिया ना मैंने। अब एक नंबर चेंज करता हूँ, ठीक है? अब मान लो कि मैं 88 नहीं 89 सर्च कर रहा होता, ठीक है, 89 सर्च कर रहा होता, तो अगर मैं आता सबसे पहले, ठीक है, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई टू, 1 प्लस 12 बाई टू, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ओके, ध्यान से देखना बस। ओके, 1 प्लस 12 बाई टू विच इज 7 आता, फिर 778 होता। अच्छा, यहाँ पे कुछ चेंज होता, यहाँ पे हम लिखेंगे 89, क्योंकि हम 89 सर्च कर रहे हैं। ठीक है, 89 देख रहे हैं तो ओके, 89 कम है, तो हमने लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन बाई टू किया। ठीक है, इतना तक तो सेम था, लेकिन अगर हम यहाँ फिर से आएंगे वापस, मिड इज इक्वल टू क्या है? मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई टू विच इज 8 प्लस 12 बाई टू विच इज 10। ठीक है, नाउ अब क्या करना है? ए ऑफ 10, ए ऑफ 10 तो 88 है, एंड थर्ड थिंग, 88 जो है वो 89 से छोटा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब जब भी ऐसा सिंपल लॉजिकली सोचो, ठीक है, लॉजिकली सोचो, जब भी हम यहाँ पे आ गए, 10 पे आ गए, हमें इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है? ठीक है, हमको इस तरफ जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ओके, हम क्या करेंगे? हम एक्शंस क्या लेंगे? एक्शंस ये लेंगे कि हम क्या कर देंगे कि हमें लेफ्ट साइड जाना है ना, तो हमें लो इज इक्वल टू
मिड प्लस वन कर देंगे। मिड प्लस वन, मिड क्या है हमारा 10 है, 10 प्लस वन विच इज 11। ठीक है। अब क्या करना है, अब ये अब हमारा लो क्या है, अब हमारा लो का वैल्यू 11 है, हाई का वैल्यू, हाई का वैल्यू 12 है। ओके, ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब क्या करना है, अब फिर से थर्ड इटरेशन में चलते हैं। ठीक है। थर्ड, जब तक हमें वैल्यू मिलता नहीं है तब तक हमें करते रहना है ये प्रोसेस। ठीक है। मिड इज इक्वल टू सेम थिंग। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं पहले ये लिख लेता हूँ। ओके, जिससे यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो क्या करते हैं, क्योंकि हमारा इंडेक्स 11 और 12 है, और 89 और 90 है। ओके, ये याद रहे। ठीक है। अब देखो, मिड इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूं मैं। ठीक है। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई टू। बार बार लिखो ये चीज, जितना बार अभी लिखोगे बाद में उतना क्लैरिटी रहेगा। बाई टू, ये क्या है, 23/2 विच इज 11.5 विच इज 11। अच्छा, सेकेंड, ए ऑफ 11 89 है, क्लियर है। एंड 88, थर्ड थिंग चेक करो, 89 इज इक्वल टू 89। हाँ, ये ट्रू है, तो इसका मतलब रिटर्न क्या करना हुआ, 11। ठीक है। अब कंपेयर करो इसको। ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करो, अगर हम लीनियर सर्च यूज करते हैं, अगर हम लीनियर सर्च यूज करते हैं तो हमें कितना टाइम्स चलना पड़ता, 11 टाइम्स, 11 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन हम बाइनरी सर्च में सेम थिंग, फाइंडिंग एलिमेंट कितने स्टेप्स में किए, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। हाँ, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में आंसर दे रहा है। ठीक है। जो हमें लीनियर सर्च में 11 स्टेप्स लगता है विच इज मोर एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटेशनली भी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो मेथड है ना, अभी हमने जो प्रोसेस किया, लो मिड इज इक्वल टू लो प्लस आई बाई टू, ये फिर ये करना, फिर आगे बढ़ना, फिर पीछे आना, फिर लेफ्ट जाना, राइट जाना, ये भी जो भी हमने किया ना, दिस इज अ algorithm, this is a binary search algorithm which is very faster than linear. So ये एक कॉन्सेप्चुअली हमारा पॉइंट क्लियर होता है। ठीक है। अब इसका algorithm देखते हैं। अब इससे पता चल गया कि हमने एक चीज आंसर कर दिया, why do you want to do it, because it is faster than linear search। मतलब एक एक आंसर को क्लियर करते चलो कि क्यों है, जरूरी क्यों है ये। नाउ हाउ टू डू इट, यू नो इट, व्हाट इट इज, यू नो इट, हाउ डू, व्हाई डू यू डू इट, हाउ डू यू डू इट। वी हैव आंसर्ड द ऑल थ्री क्वेश्चंस। नाउ लेट्स बम्प इनटू द एल्गोरिथम ऑफ इट, सो दैट वेरी इजी। अब एल्गोरिथम क्या है ना, कि आप देखोगे तो बहुत सारे जगह पे है, ठीक है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज ऑलवेज जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया ना, उसको ही अगर आपको दिखेगा ना तो वही बेटर है। अब जैसे कि हमने क्या किया, उसको थोड़ा आराम से जॉट डाउन करते हैं। तो अल्गोरिथम ऑफ बाइनरी सर्च, ठीक है, बाइनरी सर्च लिखा, ए अरे है, एन एलिमेंट्स है, एक्स एलिमेंट फाइंड करना है। तो गिवन एन अरे एन एलिमेंट्स वाला विच इज नॉन डिक्रीजिंग order, n is greater than 0, determine whether x is present, and if so return j such that x equal to a of j, else return -1। ठीक है, मतलब एलिमेंट नहीं मिलेगा तो -1। अच्छा, ये कंडीशन मैंने दिखाया नहीं ना, लास्ट में दिखाऊंगा। ठीक है। तो अभी क्या करना है, सिंपल आइडिया, सिंपल जो हमने उधर किया सेम चीज इधर करना है। क्या करना है वो भी देख लो। पहले हमें लो और हाई का वैल्यू इनिशियली सेट करना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल सेटिंग, ये हो गया हमारा इनिशियल, इनिशियल, इनिशियली। ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, हमें देखना है, क्या देखना है कि अगर वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, ठीक है, मतलब ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्यों है वो मैं अभी दिखाऊंगा, क्योंकि ये -1 वाला अगर एलिमेंट नहीं है तो क्या करना, कैसे होगा, वो मैंने अभी तक नहीं दिखा, वो दिखाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा। तो लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो इधर इसको मार्क कर लो।
ठीक है, कहीं भी कोई भी कोडिंग वगैरह, कहीं भी ये एक प्लेसमेंट वगैरह कहीं भी पूछ लेंगे कि इधर कौन सा कंडीशन डलेगा, तो इधर ये कंडीशन डलेगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, हमने क्या किया, बस उसको ही कर लो। जब तक ये कंडीशन है, ठीक है, जब तक ये कंडीशन है, तब तक हमने मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई टू। अच्छा, ये जो हमने देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं सीलिंग फंक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। मैं सीलिंग फंक्शन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, इसको मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लिख दोगे इसका मतलब नीचे वाला वैल्यू लेना है। ठीक है, अब क्या तो एल्गोरिथम में अगर मान लो इफ जो x हमारा है, जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो, अच्छा हाई में कब जाओगे, बड़ा होगा कि छोटा होगा, कब हाई में कब जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, सोचो सोचो, थोड़ी देर सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर x जो है वो मिड से कम है, इसका मतलब हमें हाई वैल्यू को इस तरफ लेकर आना है तो मिड -1 करना है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, क्या ये क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये एक्शन है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना है। ठीक है, एल्स इफ अगर x, ऑब्वियसली x अगर ग्रेटर देन मिड है, तब हमें क्या करना है, तब हमें लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन। फेयर एनफ, समझ में आ रहा है। अगर नहीं है मतलब इक्वल है, अगर नहीं है इसका मतलब दिस मीन्स व्हाट, दिस एल्स मीन्स इक्वल। इक्वल है तो क्या करना है, मिड को रिटर्न कर देना है। ठीक है, अगर इन तीनों में से भी नहीं होगा तो रिटर्न -1 कर देना है। ठीक है,